Hey guys, so this is another interview session with Srijan. So basically, he has covered all the rounds of Oracle till the final round. I think you were on till HR round, no? In Oracle. Yes. Yeah. So basically, this interview experience will definitely going to give you few ideas that will definitely helping you out in the Oracle interview. So basically, this is for a fresher category. So if you are belong to the freshers, then only view this video. Otherwise, you can skip it. So, Srijan, can you introduce yourself first? That from where you are studying, my, what is your branch, and what is your skill set? After that, we can begin with the my Oracle name session. Yeah, you can go simple, no issue. my name is Srijan. I am currently studying at KIT University. I am in my final year and I am from Electronics and Telecommunication branch. Okay, means you are from engineering background. So basically, I would like to know about Oracle package. What was the package that was offered by Oracle? 6 LPA. Okay, it was a 6 LP. I think it was then for a consultant role. Yes, consultancy. Consultancy role. Okay. So can you explain what was the process, what was the screening process over there, and how it started, and what was the eligibility criteria, and what are the skills they mentioned when they means launched the form? So first of all, we should start with the package. What are the skills that were mentioned in the form, or is there anything that was not mentioned? What were the criteria of the cutoff that you should have in class 10th and 12th, or in the BTech or your in the graduation? And after that, what was the role? You can go carry on in this fourth thing. It wasn't directly Oracle, it was FinTech Oracle, a branch of Oracle. Yeah, okay. That company is different from Oracle. That is a separate branch. And the package was 6 LPA. It was a role for consultant. Yeah. And I have registered it through the platform known as Superset. Okay. I got the application in the Superset platform. Through there I registered it, and they were the eligibility criteria was 70% in 12th board and above 7.5 CGPA in engineering, and they require skill sets like problem solving skill and small छोटा क्या बोला? Small coding means little bit coding and pseudocode kind of things. I think so. Okay. A little bit programmatic thing. So basically, it was a kind of not SD role. It was a kind of consultant role where a little bit of codings and aptitude and problem solving skills a person and candidate should have. So basically, this was all about the eligibility package and how to apply it. You should apply through Superset. Superset, it was through campus or off campus? On-campus placement. On-campus placement. So many of you have received this campus placement link through your Superset और बहुत सारे कॉलेजेस में ये आई होगी. आगे मैं बात करता हूँ कि कैसे ये प्रोसीड किए हैं, क्या क्या राउट हुई थी, रिटर्न में क्या पूछी गई थी. तो चलिए आप सृजन आप स्टार्ट करते हैं. आपकी पहली राउंड क्या थी जब आपकी स्क्रीनिंग प्रोसेस खत्म हो गया, आपने सारे एलिजिबिलिटी को पार कर लिया, तो जो स्टार्ट हुआ पहली राउंड, वहां से आपने क्या क्या पूछा उन्होंने पहले टेस्ट में, क्या थी वो बेसिकली? पहला टेस्ट था 3 राउंड में. 3 राउंड में 4 आवर का टेस्ट था, जिसमें पहला था एप्टीट्यूड और दूसरा और तीसरा कोडिंग राउंड था. दूसरा कोडिंग राउंड में केवल एमसीक्यू था और तीसरा कोडिंग राउंड में ये था टाइप करने वाला था, मतलब कोड हमको लिखना था. 2 क्वेश्चन थे उसमें. ओके मींस एप्टीट्यूड बेसिक लेवल के थे, नॉर्मल जो रहते हैं. कोडिंग एमसीक्यू मेनली थ्योरी पार्ट से था, डीएसए का थ्योरी ये सब था और थोड़ा नेटवर्किंग का भी थ्योरी था. और ये रिटर्न में मतलब टाइप करने वाला कोडिंग राउंड में 2 क्वेश्चन थे और दोनों सिंपल ही क्वेश्चन थे. एक ट्री का क्वेश्चन. ओके एंड दूसरा मुझे उतना याद नहीं है, पर दोनों डाटा स्ट्रक्चर से ही थे. और मतलब जो बेसिक जो एमसीक्यू राउंड में जो क्वेश्चन था वो बेसिकली एकदम थ्योरी था, मतलब कुछ भी आउटपुट निकालने के लिए क्वेश्चन नहीं था उसमें. आउटपुट मतलब
आउटपुट वाले भी थे, लेकिन ज्यादा थ्योरी वाले थे और कुछ कुछ नेटवर्किंग से भी थे। अच्छा, नेटवर्किंग एंड थ्योरी। आफ्टर दैट वो लोग जो कोडिंग लिए वो जनरली जो एसेंचर वेसेंचर की जो लेवल होती है, सर्विस बेस्ड की जो लेवल होती है 6.5 LPA के लिए, बस उतना ही उसी लेवल की हो गया हाँ, 100। उसी लेवल की थी। सिंपल था, उतना क्वेश्चन उतना डिफिकल्टी लेवल नहीं था, डीप ओके। डीएसए में नहीं गया था। अच्छा, आप क्या डिफरेंस फील किए कोई सर्विस इंडस्ट्री और ओरेकल का एग्जाम देने में? मतलब कुछ ज्यादा डिफरेंस लगा कि मतलब कि सिंपल, इट वाज अ सिंपल? बस यही था, और एकल का थोड़ा ये लेंदी एग्जाम था, ऑलमोस्ट 4 आवर का था। ओके और ओके बाकी यस। सब ओके, गॉट इट। 1 आवर का था। मीन्स यू हैव टू सिट और वन। उसका सर्वर प्रॉब्लम भी बहुत था, और एकल का ही सर्वर में एग्जाम हुआ था, तो ओके। उसका बार बार स्टक हो जा रहा था, टाइमर हो जा रहा था, तो उसका सर्वर उतना अच्छा नहीं था। Okay, okay, okay. Means you have to sit in a one go for 4 hours. That written round ये means there were no bracket that first you have to go for aptitude, so, and then you have to go for other round. So basically main difference यही है कि सर्विस इंडस्ट्री में 1.5 से 2 घंटे की एग्जाम होती है, ये 4 घंटे की एक लंबा सेशन का एग्जाम ले लेते हैं जो थोड़ा टायरिंग होता है। और जो लेवल हम्म, है वो जो बता रहे हैं, जिस हिसाब से जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, आप देख सकते हैं नॉर्मल लेवल पे एग्जाम हुई है, कुछ खास नहीं, क्योंकि पैकेज भी आप देख सकते हैं 6 लाख की ऑफर की गई है। तो ये थी आपके। क्वेश्चन इजी, बहुत सारे क्वेश्चन थे। ओके ओके, क्वेश्चन की क्वांटिटी ज्यादा थी, ये बोल रहे हाँ। हो? ठीक है। अब बाकी जो एप्टी वेप्टी की जो क्वेश्चन थी एमसीक्यू, उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी, तो अब यहाँ से अनुमान मतलब आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो आप रेडी हो कि नहीं इसके लिए? और इनफैक्ट अगर आप मतलब अगर आप जा रहे हो सर्विस इंडस्ट्री के लिए तो आप ये भी एग्जाम दे सकते हो, बस आपको 4 घंटे बैठना है लंबा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो बेसिकली आपको देने के बाद क्या लगा था कि आपका कितना अच्छा हुआ है, कितना खराब हुआ है, और क्या नाम आएगा आगे या नहीं आएगा? एक मैंने वाइब, तो एक वाइब आता है ना, आपको वाइब आता है देने के बाद, तो कैसा लग रहा था? मैंने पहला राउंड तो क्लियर हो गया था, तो राउंड 1 क्लियर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको राउंड 2 में ये ट्रांसफर, ये लिंक आ जाता है, एक हाइपर लिंक जैसा, कि डू ओके। यू वांट टू स्टार्ट राउंड 2। तो राउंड 2 भी क्लियर हो गया। राउंड 3 में जब गए तो 2 ही क्वेश्चन था और दोनों मेरे बन गए थे, तो हम्म हम कॉन्फिडेंट थे कि इस क्वेश्चन तो सही दोनों बन गए हैं, तो हम्म। मेरा इंटरव्यू प्रोसेस में नाम सेलेक्ट होना चाहिए। ओके ओके, सो आपके जो कॉलेजेस के और भी लोग जो बैठे थे, हर एक राउंड एलिमिनेशन ही राउंड था क्या? जैसे कि अगर जिसने पहला। एलिमिनेशन थे। अच्छा, बहुत लोगों को एप्टी के बाद ही निकाल दिया गया, बहुत मतलब जो हाँ। कैपजेमिनी की एग्जाम होती है जिस तरह के, फर्स्ट राउंड में अगर हट गए तो हट गए, सेकंड राउंड में हट गए, बस सिमिलर उस वे में था। अगर आपने पूरा पार किया तो 4 घंटे लगेंगे आपको एग्जाम में। 4 घंटे। तो इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा बूस्ट था कि मैंने सारा राउंड दिया है तो अगली राउंड आएगी। उसके बाद कितने दिन के बाद आपको इंटरव्यू कॉल आई थी? नेक्स्ट डे ही अच्छा, नेक्स्ट डे इंटरव्यू मैं कॉल। कॉलेज से ही आ गया था, कॉलेज वाले मेल कर देते हैं कि इंटरव्यू होगा कल आपका इस टाइम पे। ओके ओके, और इंटरव्यू कितने देर की शेड्यूल थी, मतलब कि जो पहली टेक्निकली राउंड इंटरव्यू होगी वो? ऑलमोस्ट 1 आवर, या टेक्निकल राउंड ऑलमोस्ट 1 आवर की इंटरव्यू थी। ओके, ऑलमोस्ट 1 आवर। और 1 आवर में उन्होंने क्या क्या कवर किया, अगर आप एक्सपीरियंस अपना शेयर कर पाएंगे तो लोगों को शेयर हेल्प हो जाए। करें तो पहले तो वो हम्म एक लिंक भेजेंगे, जूम का लिंक आपको या मेल में ही रहेगा। तो जब लिंक ज्वाइन करिएगा ना, हम्म। तो उसमें बहुत सारे रूम में आपको भेज दिया जाएगा, और पर रूम में 8 8 से 10 बच्चे रहेंगे। फिर ओके। वो जूम में ही रूम का फैसिलिटी होता है, रूम में डिवाइड हो जाता है। हम्म फिर एक एक करके वो रूम से आपको बच्चे को बुलाते हैं। तो हम्म ऑलमोस्ट आपको 30 से 40 मिनट आपको वेट करना होगा आपके टर्न आने का। और कोई कोई को तो मेरे से भी लेट बुलाया गया था, तो आपको वहीं वर्चुअल मीटिंग में रुकना है, मतलब जूम के रूम में। और जब हम्म आपको कॉल किया जाएगा, आपके ये डिस्प्ले में आ जाएगा कि आपको ब्रेक रूम से बाहर बुलाया जा रहा है। हम्म। फिर वहां पे आपका मीटिंग होगा। तो आपको तो मतलब पेशेंटली वेट करना होगा, ऑलमोस्ट 30 to 1 आवर, आपका कभी भी चांस आ सकता है। ओके, और जब आपको रूम में एंट्री मिला, मीन्स तो इंटरव्यूअर में पैनल, मतलब पैनल सिंगल इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहे थे या फिर काफी लोग थे इंटरव्यूअर? पैनल सिंगल थी। थे। सिंगल थे। और एक, हाँ सिंगल थे। और किस टाइप के क्वेश्चन से उन्होंने स्टार्ट कराया? क्या उन्होंने कोडिंग कराया इन प्रेजेंस ऑफ हिमसेल्फ, या उन्होंने कुछ क्या क्या टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे और कितने डेप्थ तो में सबसे क्वेश्चन पूछे? पहले जब जब हम्म। मैंने ब्रेक रूम से बाहर आया, हाँ। तो उन्होंने मुझे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हाय माय नेम इज दिस, आई एम वर्किंग एट ये ओरेकल एट दिस लेवल। तो या उनका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ तो मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। या इंट्रोडक्शन में मेरा आपको इंट्रोडक्शन में ही फोकस करना है कि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो। तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में अपना कॉलेज का, ये कहाँ से कॉलेज किया ये इंक्लूड किया है, प्रोजेक्ट के बारे में इंक्लूड किया है, मुझे क्या खेलना पसंद है, थोड़ा एक्टिविटी इंक्लूड किया है। और लास्ट पार्ट की हम ओरेकल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया। तो ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स का मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। या तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ तो वो थोड़े ये
मतलब लगा कि इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। तो मैंने बोला कि C++ में कंफर्टेबल हूँ। तो उन्होंने मुझे कोडिंग के लिए पूछा कि आपका, मैं आपको अगर दूंगी कुछ ये कोड करने, तो आप कर लीजिएगा क्या। तो उन्होंने अब जूम में ही व्हाइट बोर्ड शेयर होता है, वो शेयर किया। फिर मुझे 2 से 3 क्वेश्चन पूछा था। पहला पूछा था कि ये 2 नंबर को स्वैप करना था बिना ये थर्ड वेरिएबल यूज किए हुए, ठीक तो है। वो मैंने कर दिया था। फिर दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि तुम्हारा DSA में कितना नॉलेज है। तो मैंने कहा कि अच्छा खासा नॉलेज है। तो उन्होंने मुझे पहले बोला कि तुम्हें ये रेडिक सॉर्ट आता है। तो मुझे वो नहीं आता था, तो मैंने उन्हें बोला कि सॉरी आई डोंट नो रेडिक सॉर्ट, या बट आई नो अदर टाइप ऑफ सॉर्टिंग। तो या उन्होंने मुझे क्विक सॉर्ट करने दिया, तो मैंने क्विक सॉर्ट लिखा। फिर मेरा क्विक सॉर्ट हो गया। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें SQL का कितना नॉलेज है। तो मैंने उन्हें SQL का ये नॉलेज ये सब बताया। उन्होंने मुझे की ये पूछा, मतलब मेन थ्योरी ही पूछा है कि प्राइमरी की और सेकेंडरी की SQL में क्या होता है। तो उतना मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैंने जो जो मुझे की पता था, यूनियन होता है और जॉइंट होता है, मैंने ये सब की को ही प्राइमरी और सेकेंडरी की ये सब बता दिया। तो बस मेरा इतना ही इंटरव्यू हुआ था। तो ये फिर एक मैं घंटा राउंड उन्होंने प्रोजेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे गए होंगे, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, प्रोजेक्ट्स में मैंने ये AWS पे प्रोजेक्ट किया था, तो उस पे पूरा मेरे से प्रोजेक्ट समझी। पहले मैंने उन्हें पूरा प्रोजेक्ट समझाया कि मैंने प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है। या फिर मुझे उन्होंने पूछा कि क्या डिफिकल्टी आया, तो मैंने वो डिफिकल्टी एक्सप्लेन किया। तो इसी में प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था। मैंने 2 प्रोजेक्ट किया था, एक AWS पे और एक सेल्सफोर्स पे। तो ओके, दोनों प्रोजेक्ट पे ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट ये हुई थी, बात हुई थी। मतलब अराउंड 40 to 45 मिनट्स की इंटरव्यू आपकी हो गई थी, अगर मैं बोलूँ। हाँ। ओके ओके ओके, सो मींस जो अलग हमको लगा सर्विस इंडस्ट्री से जो हट के पूछे, वो आप लोग को व्हाइट बोर्ड शेयर किए थे और कोड करने को सामने बोला था, जो कभी कभी सर्विस इंडस्ट्री हाँ। में भी बोलते हैं। बट हाँ, इसमें तो पूछेंगे ही, और साथ में DBMS ये सब के भी क्वेश्चन शायद हम्म, पूछे गए आपसे, और डेटा स्ट्रक्चर के हाँ। बारे में मतलब पूछा गया। सो लेवल आप बोल सकते हैं कि अबव, मतलब बहुत टफ हमको नहीं लग रहा देख के कि इंटरव्यू बहुत ज्यादा टफ गया शायद, मतलब कि मीडियम तो उतना मीडियम। टफ नहीं था। हाँ, मीडियम लेवल पे मीडियम आपसे लेवल। क्वेश्चन जो भी पूछे गए होंगे सब आपको लग रहा होगा कि इफ यू हैव, मतलब कि नॉर्मल अगर गॉन थ्रू किए हुए हो तो मतलब कि लग रहा होगा कि यू कैन मेक ओवर दैट थिंग इन द इंटरव्यू। ठीक है, तो ये तो हो गया टेक्निकल 1। टेक्निकल 2 भी थी, या फिर टेक्निकल के बाद डायरेक्ट HR कॉल हो गई थी? टेक्निकल के बाद डायरेक्ट ये दूसरे रूम में भेजा गया। हाँ। मेरे को बोला गया कि आप ये रूम लीव कर दीजिए और वेट करिए। तो हम्म फिर हम 10 to 15 मिनट वेट किए और हम्म फिर दूसरे रूम में गए। तो हम्म वो राउंड में मेरे से बस बेसिक क्वेश्चन पूछा गया। HR राउंड भी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि हम्म उसमें भी मेरे से थोड़ा प्रोजेक्ट ये सब के बारे में पूछा गया था। और हम्म थोड़ा ये पजल, एक और पजल भी शायद मेरे से पूछा गया तो था। काइंड ऑफ फिट राउंड, इट्स काइंड ऑफ फिट राउंड आई थिंक सो, इन कंसल्टिंग कंपनी एक फिट राउंड होती है, उस टाइप से पूछ रहे हैं। पजल गेस्टिमेट हम्म, टाइप में कुछ कुछ पूछे होंगे, आई होप सो, मतलब मैं हाँ। बस गेस कर रहा हूँ शायद। हाँ। तो और एक सिंपल ही हाँ, एक डाउट और था मेरे को, ये पूछना था कि सपोज आपने जब टेक्निकल 1 कंप्लीट किया, तो बहुत लोगों को टेक्निकल 1 के बाद ही हटा दिया गया था, कि उन्हें सब लोग को लास्ट राउंड तक खींचा गया था। मतलब बहुत लोग टेक्निकल 1 के बाद हटा दिया गया था। टेक्निकल के बाद ही जो कुछ कुछ का हाँ इंटरव्यू तो 5 से 10 मिनट ही चला था, जो नहीं आंसर दे पा रहे थे। हाँ, तो और हम लोग आप, को ये बोल मीटिंग में ही बोल दिया गया था कि यू कैन गो नाउ। ओके ओके, मीन्स आपको रोका गया था और वो जो राउंड थी, जो लास्ट राउंड आप जिसको बोल रहे हैं, वो राउंड के बाद जो लोग सेलेक्ट हुए होंगे आपके कॉलेज से, उन लोग को फाइनल मेल वही राउंड के बाद आई थी, कि उसके बाद भी हाँ, कुछ राउंड? मैसेज ओके उसको ओके, कॉलेज की तरफ से SMS आ गया था कि उसी यू आर दिन, प्लेस्ड इन उसी उसी दिन। दिन। ओ मीन्स दैट वाज द लास्ट राउंड, तो आपने लास्ट राउंड तक गया। तो आपको क्या लगता है कहाँ पे आपसे गलती हुई होगी, मतलब जो आपको लगता है, ये कुछ भी गलत सही कुछ भी हो सकता है, सबकी अपने, मतलब कि इंटरव्यूअर कोई और कारण से भी नहीं लिया होगा जो, या फिर कोई लोग आपसे ज्यादा अच्छा कर गए होंगे, या फिर इंटरव्यूअर को कोई और पसंद आ गया होगा, या फिर उस दिन आपका लक नहीं होगा। बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि आप, मतलब आप मिस कर गए, किस कारण से मिस हुई होगी? मतलब कुछ फीलिंग तो रह ही जाता है। मैं उन्होंने मुझे जो सॉर्टिंग लिखने दिया था, तो या मैंने वो कोड तो लिख दिया था, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा मैंने कहीं कहीं लूप में थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। तो ओके, मेरा वो लूप में थोड़ा गड़बड़ होने के कारण मुझे लगता है वहां मेरा थोड़ा नुकसान हो गया था। अच्छा, मीन्स आप बोल रहे हो टेक्निकल राउंड में ही कुछ पॉइंट आपके कम हो गए थे, जिसकी वजह से फाइनल हाँ, आउटपुट रिजल्ट। और फिर SQL से भी मेरे से 2 3 क्वेश्चन पूछा गया था।
तो Yeah. उसमें मुझे डाउट है क्योंकि एसक्यूएल में मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उसमें हाँ मुझे डाउट है कि वो भी मेरा नेगेटिव पॉइंट गया थोड़ा। ओके ओके, मीन्स अगर हाँ आप तो इसी बैकग्राउंड से हो तो बेसिकली वो सब सब्जेक्ट आप लोग पढ़े नहीं होंगे, जो भी पढ़े होंगे अपने से ही पढ़े होंगे एज पर द प्लेसमेंट परसेप्शन। सो ठीक है, काफी चीज आप लोगों ने शेयर किया, मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या फॉर्मेट है, क्या पूछते हैं लोग, कितनी राउंड होती है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लोगों को जरूर इससे हेल्प मिलेगा। सो इन्फॉर्मेटिका हब में आने के लिए थैंक यू। होप सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऐसे ही आगे बड़े बड़े इंटरव्यू दो Amazon गूगल तक और एक्सपीरियंस शेयर करो। तो देखते हैं वीडियो में कितना व्यूज जाता है। लोग से उम्मीद करता है अगर वीडियो किसी को भी ओरेकल में मतलब ओरेकल के बारे में जानना चाह रहे हो उसको वीडियो शेयर कर दो। काफी डिटेल्ड वीडियो कैंपस प्लेसमेंट फ्रेशर्स के लिए मैं बता दे रहा हूँ, फ्रेशर्स के लिए। अगर फ्रेशर्स नहीं है तो शेयर मत करना, कोई काम नहीं आएगा। और फ्रेशर से तो जरूर हेल्पफुल होगा इफ यू आर गोइंग सुपर सेट से जो मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन होती है उसमें। सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट। वेलकम। ओके।